stage the moderator of this session, Miss Lekha Prajapati. मैं चाहूँगी कि लेखा पहले मंच पर आ जाएं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों को न्योता दूंगी. सबसे पहले जिस मेहमान को मैं बुलाने जा रही हूँ उनका परिचय आपसे करा देती हूँ. महाराज श्री Daivat Singh of Sirohi. He's very passionate about cricket and he credits his love for this game to his maternal grandfather, famous cricketer and statesman, His Highness Maharaja Jam Ranjit Singh Ji of Jamnagar, after whom the National Cricket Championship Ranji Trophy is named. While carrying the legacy of his family forward, he is in love with the environment. He just cherishes it. Thus, helping Rajasthan stay to the development of the eco-friendly hotels and tourism industries. He's also working towards conservation of natural water resources. Please welcome Maharaj Daivat Singh Ji. And now, ladies and gentlemen, let's welcome the next guest on our panel, Maharaj Shri Vikram Singh Ji of Jaisalmer. Well, he's been working towards many social causes such as girl education, better health care in the rural parts of Jaisalmer. He's also working towards handicraft, folk music and art conservation. He's also actively working for the protection of wildlife, especially the state bird of Rajasthan, Gurhamar, which is fast disappearing from the earth. What a great cause. Such initiatives by Vikram Singh Ji are helping build eco-friendly wildlife tourism in Rajasthan. Please welcome our guest, Vikram Ji. Over to you, Lekha. Thank you so very much, sir. And मैं बहुत ही honored feel कर रही हूँ, to be able to share the stage with you. Sir, मेरा पहला सवाल ये है कि sir आप लोग के लिए luxury का relation बहुत समय से रहा है. Sir, luxury की definition क्या है आपके हिसाब से? See, luxury is ऐसा एक शब्द है कि उसको थोड़ा माइक सर ऊपर. Hello. जी. Hello, can you hear me? Is it off? Hello. Okay. जी sir. आपने फरमाया ये the word luxury. So according to me, it's a little difficult to define luxury by just a simple statement. So if we go back to the roots, the word luxury, Yes. where does it come from? The word comes from the word from the Latin word lux, Oh, L-U-X-E. lovely. And what does it mean in Latin? What it means is abundance. So one way of looking at luxury is abundance. It can Ji. be abundance of crops, it can be abundance of grass, it can be abundance of fruits, it can be abundance of jewelry. Absolutely. So that's one aspect. The other aspect which I was thinking about as I was driving to Udaipur was that if we look at it from the Indian perspective, and if you look at it from the, let's say, the Vedantic worldview on various issues, so there is a very nice couplet which is actually one of the foundation pillars of our Vedantic worldview, Ji. one of the 5 pillars. And that says, Sarva Vyapi Sukhinam Santo, Sarve Santo Niramaya. So what it means is that सब जीवों को खुशी से और भय बिना आप रहने दें. Let all living beings live without fear and in a state of happiness. जी. You see, और इसमें it's not only beings में, it's not only the human beings which are considered as beings, but the animal kingdom, also plant kingdom, also your rivers, your mountains and your oceans. Ji. So it's a great environmental message as well. But here when it comes to luxury, how I'm putting this inside is that if you can live or let people live without fear, that is living in luxury. How lovely. I think we should just, clap. I think such a lovely statement, sir. So, what do you
think of the word luxury, आपके दिमाग में क्या आता है सर? खमागनी खमागनी, सर। सबसे पहले तो मैं मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग जी और श्रीनाथ जी के चरणों में वंदन करूंगा और नमन भी करना चाहूँगा हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप और उन्हीं की तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर जो हज़ारों वीर वीरांगनाएं यहाँ पर अपनी जिन्होंने प्राणों की आहुति दी उनके भी चरणों में और धन्यवाद देना चाहूँगा अमीश देवगन जी और अमित जी का भी जिन्होंने ये कार्यक्रम रख के हम सबको एक मंच दिया और सभी से जो ज्ञानवर्धक बातें हमें सीखने को मिली। मैं आपको बताना चाहूँगा मैं जैसलमेर से आता हूँ तो जैसलमेर यदुवंश की एक प्रमुख सीट है परंतु आप देखेंगे कि हज़ारों वर्षों से हम लोग 10-10 वर्ष के अकाल को झेल कर रहे हैं। तो लोगों ने बड़े कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करा तो उन कठिन परिस्थितियों में जब पानी भी आपके लिए एक लग्जरी हो और अच्छा भोजन पौष्टिक भोजन अच्छा भोजन भी आपके लिए एक लग्जरी हो तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि उसका मायना जैसा कि आपने फरमाया बिल्कुल बदल जाता है। जी। आज भी आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के 75 वर्ष हो गए परंतु गांव और ढाणियों में लोग अभी भी साफ जल और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। तो मुझे लगता है जैसा कि आपने फरमाया सबसे महत्वपूर्ण है कंटेंट होना। तो हमारे यहाँ के लोग अगर आप देखेंगे तो पुराने समय से जब मेहमान आते तो पानी और जो भी भोजन उनके पास में बचा हुआ होता वो या बकरा काटते या जो भी व्यवस्था करके उनके लिए और वो भी अनजान आदमी के लिए। तो ऐसा करना मुझे लगता है बांटना और खुश रहना कंटेंट रहना ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे अभी कोरोना का समय गया तो यदि मैं बात करूं मेरे लिए लग्जरी की तो मैं अपने स्टाफ को रिटेन कर सका और मेंटेन कर सका उनके घरों को या उनको चला सके हम जो हमारे साथ वर्षों से हैं तो ये सबसे बड़ी लग्जरी थी मेरे लिए आज तक। तो मेरे हिसाब से तो वही आपने जैसा फरमाया कि सभी बांट कर जिसमें जीव जंतु भी आ गए पर्यावरण भी आ गया हम लोग अगर बांट करके और सुखी रह सकें और खुशी बांट सकें तो ये महत्वपूर्ण है। जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लग्जरी की डेफिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है। सर आप बहुत सारे इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटलिज्म से आप बहुत जुड़े हुए हैं। सर इसमें आप राजसी लग्जरी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? आप देखिए कि सस्टेनेबिलिटी जब अपन सोचते हैं जी और आज विश्व में क्लाइमेट चेंज और टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट इज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट चैलेंजिंग and the most important thing. Yes, absolutely. So, and in that respect, what do you see is when you're talking about sustainability, what sustains life? Obviously, water. Absolutely. You see, so if you see these old forts, I mean, we have fort in Siroi, which is 1425 AD, but all forts, magnificent forts that you have around, all these forts had a great system, जहाँ की water कंजर्वेशन होता था, वाटर यूज टू बी स्टोर्ड, द रन ऑफ वाटर यूज टू बी स्टोर्ड और उनकी जो मेथड्स थे दे वर क्वाइट रिमार्केबल। आई जस्ट टेल यू वन स्मॉल facet of this and for example water comes from the hill. Hello, the water comes from the hillside, it runs in. Yes. Now there are settling tanks, so the water with the mud goes through various tanks, so the mud settles in and then the water flows out. Okay. Now the most interesting thing is that at 3 places, at least in the fort in Siroi and other places I'm sure, the water goes down and hits a wall at right angles. Okay. So the water crashes. So it goes up into the air, falls down and then moves further. So like that there are 3 right angles. So what it does, it's aeration. Absolutely. Today you do aeration to the swimming pool, those people 500, 700 years ago were thinking of aeration. Wow, lovely. You know, so I think sustainability, when you talk about sustainability, we just have to use those concepts. We can't use those methods, but we can use those concepts about conserving water in a more modern way
recycling water in a more modern way. And that can be done in all the heritage hotels that we have. Some of us are already doing it. So I think that is the most important when it comes to sustainability. There are various other things, but I'm sure there's a limit to the time here, so you can't just roll on. Thank you. जी जी सर. सर मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रही थी और मुझे पता चला कि सर आप मॉडर्न लग्जरी में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी आप कल्चर और हेरिटेज को बैलेंस करते हुए मॉडर्न लग्जरी में बिलीव करते हैं. इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजघराने हैं राजस्थान पूरे के, जैसा कि आपने मेवाड़ लक्ष्यराज सिंह जी यहाँ विराजे हुए थे, आपने देखा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया पूरे राजस्थान में अपने किले, हवेलियाँ, महल और अपने दिल और घर लोगों के लिए खोले. तो ऐसा पहले कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिला था. इट वाज अ न्यू इनिशिएटिव. और उसके साथ में आप देखें कि उन्होंने जब ये खोला तो आज पूरी दुनिया को एक नया परिदृश्य देखने को मिला कि आपको कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सभी जानने को मिला. तो उसी को कंटिन्यू करना और अच्छे ढंग से पेश करना पूरी दुनिया के आगे. तो अब लोग एयरबीएनबी की और पूरा विश्व बात कर रहा है, पर आज से 50-60 वर्ष पहले ये सोच आनी और उस सोच को इतनी खूबसूरती से पेश करना, मुझे लगता है कि ये इट इज़ अ ब्यूटीफुल अमेलगमेशन ऑफ यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर. मॉडर्न आप अगर बात करें तो मॉडर्न द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, यू नो अर्लियर हमारे यहाँ हेरिटेज होटल्स के लिए एक कहावत हुआ करती थी कि आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ कम मिलेंगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल था. यू नो इफ़ यू मेक अ रेगुलर मल्टी स्टोरी होटल तो उसके अंदर आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम होता है जी. तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करना, महलों में किलोमीटर्स के अंदर स्टाफ भागता रहे परंतु वो पहुँचे नहीं कमरों तक जी. तो वो सब चीज़ों को प्रोवाइड करना एक बड़ा मुश्किल कठिन कार्य था. अब विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और जो व्यवस्थाएं अब आ गई हैं उसको लेकर के अब मुझे लगता है कि अब हम लोग किसी से पीछे नहीं है. बेहतरीन कार्य हो रहा है. अब इसमें आप देखेंगे कि हेरिटेज होटल्स आर डूइंग इवन बेटर. पहले आप बात कर रही थी कि लग्जरी का क्या, यू नो इवन विद क्लोथिंग एंड ऑल, तो सारी दुनिया आज रॉयल वेडिंग्स की बात कर रही है. लोग उसी तरह से सज धज कर शादियां करना चाहते हैं. पहले लोग थोड़ा उसको दूसरे नजरिए से देखते थे, परंतु अब सीख रहे हैं. तो मुझे लगता है दैट इज अ गुड साइन. या इट्स अ लवली थिंग. यस. दैवत सर, आपका संबंध क्रिकेट से भी है और सर महाराजा रणजीत सिंह जी ऑफ जामनगर, जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, आपके मैटरनल ग्रैंडफादर थे. सर आपको लगता है क्रिकेट और लग्जरी में कोई सिमिलैरिटी है और हम क्रिकेट से कुछ सीख सकते हैं लग्जरी के लिए? Very difficult question, because how do you No, sir, it's connect? absolutely not. Because Sir, how do you connect? sir, how do cricket you, is in your blood, sir. You know, how would you connect, say, cricket with luxury? I mean, very difficult, because I think as a game, it is obviously a game. Luxury is actually entwined in cricket. Absolutely. Because earlier you see 5-day matches, so time itself. So I would look at that aspect. Yeah. There you have 5 days. I mean, that's a luxury. That's one thing. But I'll tell you one thing which may not be exactly luxurious, but what I have observed in cricket, you know, I have found that you can almost give a character of the person by how he bats. Absolutely, I cannot agree more. You know, Absolutely, yes, I mean, yes. whether he's impetuous or whether he's calm or whether he's driving, what are his favorite shots? Are they leaning cover drives or are they hooks and pulls? You can make out what sort of a person he is when he comes across you, you know. So you can characterize a person, I feel, when you see his batting. And I always try to do that. And I think the same goes with luxury. You know, the kind of things you choose, I think probably एक personality पता चल जाती है एक इंसान की. हाँ, जरूर. You can. Sir, make ये that. similarity. And it's a challenging sport. And I think हिंदुस्तान में cricket ने बहुत, you know. Sir, आपने तो कितना क्रिकेट खेला है? You know, 1986 में, 1896 में मेरे बड़े नाना रंजीत सिंह जी, he played the first test match
was the first Indian to play Test cricket. Oh, lovely, And lovely. in his very first Test match, there was no Test cricket in India. So उस समय इंग्लैंड में था, तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले जी. और उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 154 बनाए, you know, and he was one of, you can say he was father of Indian cricket, Oh, wow, wow. because our Test cricket came in 19, and being father of Indian Test cricket, he played all his cricket इंग्लैंड में. वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो कैम्ब्रिज में खेले, फिर ससेक्स में खेले और फिर इंग्लैंड के लिए खेले. जी. बट उसका एक आपको ज़रूर ये मैं बताना चाहूँगा और आप सबको इंटरेस्टिंग होगा, जी. बिकॉज इंडिया इज़ क्रिकेट क्रेजी कंट्री. Absolutely. क्रिकेट इज़ लाइक रिलीजन. कि बीइंग एन इंडियन ही टॉट द इंग्लिश हाउ टू प्ले क्रिकेट. Wow, wow, wow. ही जो स्ट्रोक्स नहीं थे, बिकॉज इंग्लैंड तो बड़े कॉपी बुक स्टाइल में खेलते, जी, इस जी, बॉल सर. को यहाँ फॉरवर्ड खेलना है, इसको बैक खेलना है, एग्जैक्टली. सो ही इन्वेंटेड दिस लेग ग्लांस एंड ही वाज वेरी प्रोलिफिक. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जी 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 जी. सर, आपको ऐसा लगता है कि लग्जरी टूरिज्म लोकल कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली? बिल्कुल पूर्ण रूप से करती है. आप देखें हमारे यहाँ पर जितना भी हेरिटेज होटल हैं, आई ऑलवेज टेल दिस कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड सी कि हेरिटेज होटल सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट देती है, सबसे अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने वाली और एक बहुत बड़ा स्टेज देने वाली. क्योंकि आपके पास में रॉयल्टीज से लेके डिग्निटरीज से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके पॉलिटिशियन से लेके सभी लोग इस महल में आते हैं जी. परंतु स्टाफ आपको मिलेगा जो कई वर्षों से आपके पास में पीढ़ियों से काम कर रहा है. लेडीज़ भी हैं, आदमी भी हैं, कुक्स भी हैं. आप देखेंगे हमारे यहाँ के तो ऐसा और कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये चीज़ दे सकता है. तो मैं वही लोगों को भी कहता हूँ कि आप अनस्किल्ड लेबर को स्किल करके और अधिक से अधिक लोकल्स को रोज़गार दें. दैट जी. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे जो वीवर्स हैं, पॉटर्स, जैसलमेर की मैं बात करूँ तो हमारे जो लोक कलाकार हैं वो वर्ल्ड मैप पे, अभी आपने देखा मामी खान को और कांस में थे रेड कार्पेट पर. ओह वाओ, लवली. तो हमारे लोक कलाकार बड़े प्रसिद्ध हैं, पर जी, जी, पहले जी. सिर्फ हम लोगों के यहाँ वो ज़्यादा जजमान प्रक्रिया में वो लोग थे. अब उन्हें वर्ल्ड स्टेज मिला तो वो टूरिज्म की वजह से मिला है. जी. और टूरिज्म से अब आप देखें तो एक एक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 5-6 हज़ार हमारे यहाँ लोक कलाकार हैं. अभी वो छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे कि 30-40 कंट्रीज घूम के आ गए. तो वाह. ऐसा और कहाँ मिल सकता है, ये स्टेज उनको टूरिज्म की वजह से मिला है. तो ये बड़ी खुशी की बात है. और जो आर्ट एंड क्राफ्ट भी बच रही है तो वो आप स्टेज टूरिज्म ही दे रहा है. जी जी. जब टूरिज्म आया तभी से उनकी ये जो कला है ये पूरे विश्व ने देखी. हमारे यहाँ का लेदर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है. हमारी कलाकारी जैसलमेर की काफ़ी प्रसिद्ध है. इवन पॉटर्स हमारे यहाँ के फेमस हैं. तो इन सभी को आज जो एक स्टेज मिला, वीवर्स हमारे यहाँ के बड़े फेमस हैं. तो ये सभी इसी वजह से मिला. और लग्जरी जितना अधिक अब जो लोग जैसे रॉयल वेडिंग्स के लिए आते हैं, बड़े फंक्शंस के लिए जैसलमेर में आते हैं, तो इन लोगों को और भी ज़्यादा मार्केट मिल रहा है. वो बड़ी खुशी की बात है. लवली लवली लवली. दैवत सर, मैंने सुना है और मैं जब रिसर्च कर रही थी, आपका नाम एसोसिएटेड है एक इको फ्रेंडली होटल के साथ. जी. और सर, सबसे अच्छी बात यह है कि वो फिर भी लग्जरी अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं. जी. है इको फ्रेंडली बट लग्जरी अकोमोडेशन. सर, कैसे कैसे किया सर ये आपने, कैसे बैलेंस आउट हुआ है ये? Again, it is how you are defining the word luxury. Absolutely. But to put it in a nutshell, eco-friendly is that you are friendly with the environment. जी. So basically, if you use building materials which are eco-friendly, which are not brought from very far. Classic example is हमारे एरिया में मार्बल काफ़ी निकलता है आबू रोड वगैरह में, you know, माउंट आबू एरियाज में. जी, जी, For जी. wherever Mewar has a lot of marble. So it's better to use that marble rather than to get Italian marble. And even this marble has a sense of luxury. जी. You know, things like that. Yes, So yes, there absolutely. are 100 things that I could probably name you. But small things like that, every drop like makes an ocean. So every small thing makes it eco-friendly.
And of course, I have gone a step further, which a lot of my other heritage hotel colleagues would not agree, and I don't want to impose on them. Everybody has got their own. Sure. But I have made my hotel vegetarian, vegetarian hotel. Oh, lovely. Yeah, Okay. because I personally believe that in order to produce meat, to produce a kilo of meat, you need so many gallons of water, whereas to produce the same amount of protein in terms of vegetables, you need far less water. Absolutely. So sustainability also comes into that extent. जी. Lovely. विक्रम सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस खोलने की सोच रहा है और चाहता है कि वो लग्जरी इनकॉर्पोरेट करे, सस्टेनेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करे अपने बिजनेस में, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? सेम थिंग गोज, अगर आप होटल्स की बात करें तो होटल्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमारा लोकल जो जैसे हमारे यहाँ का पत्थर बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में पत्थर जाता है, पीला बहुत सुंदर पत्थर है, काविंग में उससे सुंदर पत्थर नहीं है। हमारे यहाँ जो काविंग हुई है वो आपको लकड़ी पे भी नहीं देखने को मिलेगी, इतनी इंट्रिकेट काविंग पत्थर पर हो जाती है हमारे जो जैसलमेर स्टोन है। तो अधिक से अधिक आप वो यूज़ करें, उससे आप कितना दर्शा सकते हैं उसको, कितने सुंदर तरीके से, और कितना लोकल्स को फ़ायदा दे सकते हैं उससे। अगेन मैं कहूँगा कि लोकल लेबर यूज़ करें। कोई दूसरे बिजनेस हाउसेस अगर आना चाहते हैं, जैसे कि सोलर, विंड हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, तो दे शुड गिव बैक। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि CSR की जो एक्टिविटीज़ हैं वो महत्वपूर्ण है कि अभी भी हमारा ज़िला भारत के 100 पिछड़े ज़िलों में से एक है। तो आप वापस कुछ कॉन्क्रीट काम करें, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए हो, चाहे आप मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट दें, तो कुछ वापस देने की जो वृत्ति है वो ज़रूर होनी चाहिए और कॉन्क्रीट होनी चाहिए। मुझे लगता है आप जितना भी बिजली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई थिंक वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड एनर्जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड फार्म्स, इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सोलर फार्म इन इंडिया एज वेल, प्रॉब्ली इन एशिया pretty soon. So it is very important कि हम नेचर को कैसे संभालें। हमारे ओरन गौचर वहाँ पे वी लिव ऑन लाइफ स्टॉक, हमारे जैसलमेर में खेती कम है, तो लाइफ स्टॉक कैसे साथ में बचे, हमारे ओरन गौचर जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं सेक्रेड, उनको हम कैसे बचाएं और साथ लेकर के इनको हम आगे बढ़ें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Very well said, sir. Thank you so very much for being here. Thank you, sir. Thank you, Vikram, sir. It was lovely talking to you, and I hope this session was very informative. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया दैवत जी, विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सोच हम तक पहुंचाई और किस तरह से आप अपने अपने नज़रिए से काम कर रहे हैं, अपने अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर को लेकर हो। इट्स कमेंडेबल, ज़ोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। एंड नाउ मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट मिस्टर आदित्य टंडन वंस अगेन ऑन स्टेज, वाइस प्रेसिडेंट ब्रांड एंड मार्केटिंग न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर आएँ और हमारे मेहमानों को हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत करें। दैवत जी और विक्रम जी के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का इस मंच पर आकर अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी तरफ से किया जा रहा काम आपने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो जाएं विक्रम जी के लिए, दैवत जी के लिए। आदित्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू लेखा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन